Hello dear students, I hope you all are doing well. Today's video is about to give an idea to those researchers who are searching for an idea to develop their MPhil or PhD research project. The field of research which I'm going to share with all of you today is very innovative, and in this field of research in our region बहुत कम काम हो रहा है. Field is getting hype with the passage of time और every year number of publications में एक remarkable increase जो है वो देखने में मिल रहा है. I will share with you all the analytics that how the researchers are getting interest in this field of research with the passage of time and how it is important to know about this area of research. And this is about the ionic liquid. These are known as safer solvents also. हम इनको जो है मुख्तलिफ नामों से जानते हैं. Basically, this is a type of a green solvents and it undercomes the green chemistry. So, if somebody want to know about what is green chemistry and then a very specific branch of the green chemistry, that is the green solvent, then this video is going to give you a lot of information. So, what is green chemistry? Green chemistry को जब हम define करते हैं, this is the field of chemistry which is working to save the environment, which is working towards the development of a safer solvent. So this branch of chemistry is working to design the chemical process and chemical products which are environment friendly and which are going to save our environment from the dangerous and hazardous chemicals. Green chemistry basically works on 12 principles, and today I am going to share with you about the very important branch of the green chemistry, and that are the safer solvents or green solvents. Ionic liquids or green solvents are also known as the safer solvents, and these are known as the solvents for the future, because in the future they are going to replace all the traditional organic solvents which are ultimately polluting our environment. So when we look at the history and progress of the green solvents, the first ionic liquid was synthesized by Paul Walden in 1914, and name of that ionic liquid was ethyl ammonium nitrate, and having a melting point 12 degrees Celsius. And when we look at the progress graph of the ionic liquids, we can see that in 2001 less than 300 research papers were being published each year, and this number crossed 3000 publication per year in 2013, and this number is increasing gradually with the passage of time. So the question arises, what are these ionic liquids? Ionic liquids basically they are known as the molten salt. They are semi-organic solvents. We can't say them inorganic solvents, or we can't say them organic solvents. They lie between organic and inorganic solvents. Their properties doesn't match completely with organic or inorganic solvents. Mostly they are available in the liquid form, and they are also known as a room temperature ionic liquid. Those ionic liquids which having melting point less than 25 are known as room temperature ionic liquids. When we look at the structure of the ionic liquids, तो ionic liquids जो होते हैं basically they are composed of cation and anion. As the name indicates, we call them molten salts. जब salt का लफ्ज आता है तो इसका मतलब है यहाँ पर एक cation होगा और एक anion होगा, लेकिन इनकी properties जो होती हैं वो salt से totally change होती हैं. अब इनकी properties salt से क्यों मुख्तलिफ होती हैं, हम अभी इसको देखेंगे. यहाँ पर कुछ common cations और anions mentioned हैं which are forming the structure of ionic liquid. Basically, imidazolium based ionic liquids are very common ionic liquid and having a lot of applications in chem. Why are ionic liquids and liquids? जैसा कि इनके नाम से जाहिर हमने देखा, they are known as a salts in, और इनमें cation भी होता है and anion भी होता है. Then why they are not available in the form of a solid, और हमें ये liquid form में क्यों मिलते हैं? तो ये देखें, एक ट्रेडिशनल सॉल्ट होता है, उसमें अगर हम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लेते हैं, तो जो कैटाइन और एनाइन होते हैं, दे आर एफिशिएंटली पैक टू फॉर्म द क्रिस्टलेटस. जो हमारे पास उसका क्रिस्टल होगा, उसको फॉर्म करने के लिए कैटाइन और एनाइन एक दूसरे के साथ कंप्लीटली पैक होंगे. और यही वजह है कि इतनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस
की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉल्ट्स का वो बहुत हाई होता है। सोडियम क्लोराइड का जिस तरह मेल्टिंग पॉइंट 803 डिग्री सेल्सियस है। जब हम आयनिक लिक्विड्स की बात करते हैं तो with ionic liquids the cations are asymmetrically substituted with different length groups to prevent the packing of cation and anions into a crystal lattice। होता क्या है कि यहाँ पर आपके पास जो कैटाइन होता है एक तो वो बहुत लॉन्ग चेन उसमें कार्बन की होती है और फिर वो एसिमेट्रिकल होता है, उसमें सब्स्टिट्यूशंस बहुत ज्यादा होती हैं। हम थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करके उस लॉन्ग चेन कार्बन के ऊपर उस आयनिक लिक्विड की प्रॉपर्टीज को चेंज कर लेते हैं। जो एनाइंस होते हैं हमारे पास वो हमारे पास नॉर्मल एनाइंस भी हो सकते हैं, स्मॉल साइज भी, और लॉन्ग साइज एनाइन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एसीटेट आयन भी यूज कर सकते हैं क्लोराइड की जगह पर। तो यही वजह है द चेंज इन द साइज ऑफ द कैटाइन एंड एनाइन prevent ionic liquids to form a crystal lattice. So what are the unique properties of the ionic liquids? उनके अंदर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो उनको दूसरे सॉल्वेंट से मुख्तलिफ करती हैं? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, दे हैविंग वेरी लो वेपर प्रेशर, वोलेटाइल नहीं होते, एनवायरमेंट में खुद से ओपन भी पड़े हुए हों तो इनका बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई होता है कि ये इनका वेपर प्रेशर जो होता है बहुत कम होता है। दे शो हाई थर्मल स्टेबिलिटी और यू कैन सी दैट द टेम्परेचर रेंज जिस पे जाके ये बॉयल होना शुरू होते हैं। इनकी विस्कोसिटी जो होती है वो वेरिएबल होती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कैटाइन एंड एनाइन। हमारे पास ये लेस विस्कस भी हो सकते हैं और जो है हाई विस्कस भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली इनकी विस्कोसिटी जो होती है हमारे पास ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से ज्यादा होती है। दे कैन ईदर बी अ हाइड्रोफिलिक और कैन ईदर बी अ हाइड्रोफोबिक एंड दे आर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग मल्टीपल सॉल्वेशन इंटरेक्शंस। जितनी भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस हैं आप उन सब में इनको जो है वो एज अ सॉल्वेंट, एज अ कैटलिस्ट जो है यूज कर सकते हो एंड दे विल गिव यू अ मोर बेटर रिजल्ट एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो एक छोटा सा आइडिया शेयर कर रही हूँ, यू कैन जो ऑलरेडी नोन सिंथेसिस हो चुकी हुई हैं ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, वहां पर अगर आप उन सिंथेसिस को आयनिक लिक्विड्स के साथ करते हो तो यू कैन रिपोर्ट दैम एज अ न्यू वर्क, और आप मेथोडोलॉजी पे काम करके आयनिक लिक्विड्स के साथ बहुत सारी सिंथेसिस जो हैं उनको कम वक्त में विद द हाईएस्ट यील्ड जो है उनको कैरी ऑन कर सकते हो। दे आर नॉन वोलेटाइल एंड आर नॉन फ्लेमेबल एंड इलेक्ट्रोकेमिकली स्टेबल होते हैं और हम इनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, इजीली सेपरेबल होते हैं बिकॉज ऑफ देयर यूनिक प्रॉपर्टीज। एप्लीकेशन ऑफ आयनिक लिक्विड्स की तरफ अगर हम देखते हैं तो दे हैव बीन यूज्ड इन डिफरेंट प्रोसेसेस जिनमें हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। सेपरेशन एंड एक्सट्रैक्शन केमिस्ट्री है हमारे पास। सेपरेशन में हमारे पास जिस तरह से हम मल्टीपल कंपाउंड्स है हमारे पास, जिससे हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को यूज करते हैं फॉर द कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और हम नेचुरल प्रोडक्ट से डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स जो हैं उनको सेपरेट करते हैं। तो आयनिक लिक्विड जो है हमें टारगेटेड कंपाउंड को सेपरेट करने में बहुत हेल्प आउट करते हैं। और इसके अलावा दे कैन रीप्लेस ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन द केमिस्ट्री, जहां जहां पर भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में और बाकी फील्ड ऑफ द केमिस्ट्री में जहां पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज हो रहे हैं हम वहां पर इजीली आयनिक लिक्विड्स को हैं वो रिप्लेस कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक सिंथेसिस और कैटालिटिक केमिस्ट्री में इनका बहुत रोल है। एज अ कैटलिस्ट दे आर प्लेइंग अ मार्वेलस रोल। आयनिक लिक्विड्स को आप कैटलिस्ट यूज करेंगे तो ये आपके केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बहुत ज्यादा एनहांस करता है। दे आर हैविंग अ ग्रेट एप्लीकेशंस। अगर आप इनको इफ यू हैव इंटरेस्ट और आप इनकी एप्लीकेशंस देखने लगोगे तो आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन मिलेंगी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम कैटाइन और एनाइन दोनों को बायो एक्टिव कैटाइन और एनाइन चूज करेंगे और इस तरह जो मेडिसिन बनेगी उनकी एक्टिविटी ट्रेडिशनल एक्टिविटी से कहीं ज्यादा होगी। इसी तरह इनकी एप्लीकेशंस जो हैं हमें मुख्तलिफ तरह की जो साइंसेज हैं उनमें देखने में मिलती हैं और इनकी एप्लीकेशंस को डे बाय डे जो है एक्सप्लोर किया जा रहा है।